Hello dear students, today we are having this unit 3 of English CP book, Conflict and Hope. So बच्चों, ये जो यूनिट है हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट एंड होप्स के बेस पे होने वाला है. इसमें हम जो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से पोकाहॉन्टस. Pocahontas was a brave Native American famous woman for bringing about peace between the Native Americans and English colonists who settled near their land. There was different version of her story. This story is one way in which history remember her. Pocahontas. Pocahontas was the daughter of Powhatan, the powerful chief of the Powhatan Confederacy, a large group of more than 30 Algonquin tribes and 25,000 members. These tall and well-built people lived in the low-lying coastal regions of modern-day Virginia. They built wooden homes, carved canoes out of trees, and used rocks and bones to make tools. The men hunted and fished, and the women farmed. Pocahontas, the favorite daughter of Chief Powhatan, did attract special notice for her beauty and liveliness, hence the name Pocahontas, meaning playful one. On 4th of May 1607, the 12-year-old Pocahontas sat on a hill admiring the landscape lined with tall trees, lush meadows, and colorful flowers. As she gazed at the horizon, the azure sky, and the deep blue sea, she saw a huge ship with white sails. Excitedly, she ran to her father and brother with the news. Chief Powhatan listened to the news but was not happy. He said, "The white men coming is bad news. There is no peace with the white men here." Nantakas, Pocahontas' 18-year-old brother, was a sturdy warrior. He echoed his father's views. "In the past, the white people killed many of our people to take our land. They are dangerous." Nantakas and Pocahontas paddled down to the bay in a canoe to find out more. On the ship, they saw a tall man with red hair and white skin. He was dressed differently too. Nantakas turned back and informed his father. Powhatan consulted his advisors and medicine men. They concluded that white men brought with them problems. They had magical powers and thunder sticks with which they could kill anyone with ease. They were there to take away their land, their lakes, their rivers, and their forests. The white man was Captain John Smith. His crew was happy to be in Chesapeake Bay. They wanted to establish a small settlement there. There they hoped to find gold and silver in the New World. They also hoped to find a shorter river route to the Pacific Ocean in order to trade more easily with the countries of Asia. The site chosen for the Jamestown colony was on a peninsula in the James River. Today, this peninsula has become an island. The settlers chose this site and built some huts, a storehouse, and a church. They chose this site for their settlement for several reasons. It was close to deep water and offered easy access to supply ships. No one lived on it, and its shape made it easy to defend. However, the confident colonists soon came to regret their choice. The land was marshy, and the water they drank from the river was muddy and salty. These first settlers had little practical experience with farming, food storage, and organized labor. Most of them were tradesmen, not workers. Ignorant of what was required to survive in a difficult new environment, the group failed to put by adequate stores of food. In August 1607, bad drinking water, disease-carrying mosquitoes, and lack of food caused the settlers to fall sick. By the end of the first year, only 38 of the original 104 settlers had survived. Gradually, the English colonists and the tribes began to trade with each other. The Powhatans offered food in exchange for the settlers' tools and other goods. Their relationship was an uneasy one. Although the Powhatans offered gifts of food, they also sometimes attacked colonists who were found outside their settlement. One day,
Captain Smith and his men went into the forest to look for food. There they were captured by the tribe and taken to Chief Powhatan. Captain Smith tried to communicate to Chief Powhatan in sign language and a few local words that they wanted to live peacefully. He also presented Chief Powhatan with a compass. Powhatan and his tribe thought it was magic and wanted to kill him. Pocahontas begged her father to spare the white man and saved John Smith's. After this incident, Pocahontas and John Smith became great friend. वो अच्छे मित्र बन गए. Pocahontas become familiar face of in the settlement और बहुत जल्दी Pocahontas जो थी वो उनके settlement में जाने आने लगी. She sometime brought gift of food for them from her father to the colonists. John Smith taught her English and she taught him her language. जॉन स्मिथ ने उसको अपनी लैंग्वेज सिखाई इंग्लिश और उसने भी अपनी लैंग्वेज उनको सिखाई. शी टोल्ड हर अबाउट लंदन एंड इट्स उसने जो बताया कि लंदन की जो इनॉर्मस बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, अबाउट किंग जेम्स फर्स्ट एंड हिज पैलेस, अबाउट मैन वुमेन देयर एंड देयर कल्चर. वहाँ के लोगों के बारे में बताया, उनके कल्चर के बारे में बताया. पोकाहांटस लिसन विद इंटरेस्ट एंड ड्रीम्ड अबाउट लंदन. पोकाहांटस ने सुना उनको और अच्छे से उसके बाद में वो ड्रीम करने लगी लंदन के बारे में. चीफ पोहाटन बर्न सेंट हर टू जेम्सटाउन टू आस्क द इंग्लिश मैन टू रिलीज देयर नेटिव अमेरिकन कैपिटिव. शी वॉज सक्सेसफुल इन कैरिंग आउट दिस डिप्लोमेटिक मिशन. तो चीफ ने उन्हें एक बार भेजा उसे और वो इंग्लिश मैन से अपने जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको छुड़ाने की बात की, तो वो सक्सेसफुल रही डिप्लोमेटिक मिशन में. हाउएवर दिस पीरियड ऑफ फ्रेंडली ट्रेडिंग डिड नॉट लास्ट. द स्ट्रगलिंग अनहेल्दी इंग्लिश कॉलोनिस्ट बट डेस्परेट फॉर फूड. हालांकि ये जो फ्रेंडशिप ट्रीट थी वो ज़्यादा समय तक नहीं चली. जो इंग्लिश लोग थे वो वहाँ पे कॉलोनिस्ट वो फूड के लिए डेस्परेट थे और उन्होंने दे वांटेड कॉर्न बट टेरिबल ड्रॉट हैड reduced Powhatan's crop and tribe had no surplus to trade. Angry colonists began threatening the Powhatans. तो जो वहाँ पे जो सूखा पड़ गया ड्रॉट की वजह से, वहाँ पे उनको खुद को क्रॉप नहीं हुई जिससे कि वो इतनी क्रॉप बचती कि वो व्यापार कर पाते. इस तरह से जो एंग्री कॉलोनिस्ट थे वो डर मतलब उन्होंने पोहाटन्स को डराना शुरू कर दिया. बाय विंटर जेम्सटाउन सेटलर हैड वेरी लिटिल फूड टू ईट. मैनी सेटलर वर इल एंड वीक. विंटर तक जेम्सटाउन में जो सेटलर्स थे वो फूड की बहुत कमी हो गई और बहुत सारे जो थे वीक हो गए, बीमार हो गए. पोकाहांटस हेल्प देम बाय कोआक्सिंग हर फादर टू शेयर कॉर्न मीट अदर फूड विद द कॉलोनिस्ट. हालांकि पोकाहांटस उनकी हेल्प करती रही अपने फादर से कॉर्न और ये मीट और अदर फूड आइटम्स देने के लिए. बट व्हेन मोर शिप्स फ्रॉम England come to Jamestown, Powhatan but concerned about the future of his tribe and refused to give them more food. जब और भी शिप आने लगे लंदन से इंग्लैंड से तो उन्होंने उनको जो फूड था वो देने से अपने फ्यूचर को बचाने के चक्कर में उन्होंने ये सब बंद कर दिया या मना कर दिया. One night Powhatan and James Smith tried to settle a negotiation till past midnight. एक दिन जब पोहाटन और जेम्स स्मिथ ने सेटलमेंट या नेगोशिएशन करने की कोशिश की, पोहाटन सजेस्ट द कैप्टन स्मिथ स्लीप इन ए स्मॉल कैबिन नियर द रिवर. तो पोहाटन ने उनको सजेस्ट किया कि जो कैबिन है वहाँ पे आप सो सकते हैं. चीफ स्मिथ वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ चीफ्स इंटेंशंस टू किल. तो यहाँ पे जो स्मिथ था वो अनअवेयर था उसकी क्या इच्छा है चीफ पोहाटन की. दैट नाइट पोकाहांटस वार्न हिम टू एम्बुश प्लान्ड बाय हर फादर. जो उसके फादर ने प्लान बनाया था उसके बारे में उसने वार्न किया. चीफ स्मिथ डिड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड लेफ्ट फॉर जेम्सटाउन इन द मिडिल ऑफ द नाइट. तो जो जेम्स स्मिथ था उसने वेट नहीं किया और वो वहाँ से चला गया. यानी कि जो प्लान उसके फादर का था पोकाहांटस ने उसको जेम्स स्मिथ को बता दिया कि इस तरह से आपको मार सकते हैं या कुछ भी आपकी लाइफ के लिए खतरा है. देयर ही टोल्ड द सेटलर एंड पोकाहांटस सेव्ड हिज लाइफ अगेन.
उसने अपने सेटलर्स को बताया कि पोकाहांटस ने मेरी लाइफ बचाई है। जेम्स स्मिथ रिटर्न टू इंग्लैंड, जेम्स स्मिथ इंग्लैंड वापस चला गया। इन पोकाहांटस प्लेज एवरीवन थॉट द जेम्स स्मिथ चीफ स्मिथ वॉज डेड। उसके यहाँ जो पोकाहांटस के विलेज में सारे लोगों को ये पता था कि वो जो चीफ है वो मर गया है। However, when more and more white settlers come to Jamestown, Chief Powhatan decided to declared war on the settlers. तो और ज़्यादा लोग आने लगे तो चीफ पोहाटन ने वार जो था यानी कि युद्ध की घोषणा कर दी। He sent Pocahontas to live with the Potomac tribe. एक अलग ट्राइब है उसके पास उन्होंने भेज दिया। Fear of she might come to harm otherwise. तो उसे डर था कि अपनी बेटी को उसने दूसरी जगह भेज दिया। Pocahontas was safe with the Potomac tribe. Chief Jeffreys was the head of the Potomac tribe. जो चीफ जोसेफ था वो वहाँ का चीफ हेड था उस ट्राइब का। तो देयर पोकाहांटस मैट चीफ जेपोजोस फ्रेंड कैप्टन सैमुअल आर्गल एंड इंग्लिश एक्सप्लोरर हु लिव्ड इन जेम्सटाउन। तो वहाँ पे वो एक चीफ कैप्टन से मिली। कैप्टन आर्गल वो इंग्लिश एक्सप्लोरर था। कहाँ पे पोकाहांटस को वहाँ पे सेफली पोटोमैक ट्राइब के पास भेजा था, वहाँ पे उसको चीफ सैमुअल आर्गल मिलते हैं। One day, Captain Argyle invited his chief Jepogos, his wife Pocahontas to see his ship. तो कैप्टन ने एक दिन इनवाइट किया चीफ जोफोजो को और वाइफ को पोकाहांटस को उसके शिप को देखने के लिए। चीफ एंड हिज वाइफ मैनेज टू लॉर पोकाहांटस इनटू द आर्गल शिप्स। तो पोकाहांटस को वो शिप पे ले गए। दे वर वेल लुक्ड आफ्टर बट बाय द सनसेट पोकाहांटस रियलाइज दैट शी वाज कैप्टन आर्गल्स प्रिजनर। तो वो उसको समझ गई पोकाहांटस की वो उसकी प्रिजनर बन गई है, उसकी कैद में है। तो चीफ जो जोफोजस था हिज वाइफ हैड हेल्प कैप्टन आर्गल कैप्चर पोकाहांटस फॉर द पेमेंट ऑफ कॉपर केटल एंड सम कलर्ड बीन बेट्स। तो उन्होंने जो उनको जो लालच दिया था चीफ के लिए कैप्टन ने कि उसको कुछ कॉपर की केटल दे देंगे और उनको को कलर्ड बेट्स दे देंगे। तो इस तरह से कैप्टन आर्गल डिड नॉट वांट टू हर्ट पोकाहांटस बट ही परस्यूड लोकल चीफ टू ज्वाइन फोर्स विद हिम अगेंस्ट पोहाटन्स। बट इस तरह से उसकी जो इच्छा थी कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने लोकल चीफ को ज्वाइन करने के लिए उसने उसको कैदी बनाया था। आर्गल देन सेल्ड टू जेम्सटाउन चला गया। एवरीवन इन जेम्सटाउन लाइक्ड पोकाहांटस बिकॉज दे नो दैट शी हैड सेव्ड कैप्टन स्मिथ। आर्गल जेम्सटाउन चला गया और वहाँ पे हर कोई उसको पोकाहांटस को पसंद करता था क्योंकि सभी को पता था कि कैप्टन स्मिथ को उसने बचाया है। उसको दो बार बताया, लाइफ ट्वाइस एंड हैड ब्राउट दैम फूड ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर, और उसको फूड भी दिया है उन सब लोगों को। पोकाहांटस वाज ट्रीटेड वेल, गिवन इंग्लिश क्लॉथ टू वियर, टॉट इंग्लिश एंड इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश मैनर एंड कस्ट्यूम। तो उसको सारी चीज़ें सिखाई गई वहाँ पे, उसको इंग्लिश मैनर्स, कस्ट्यूम पहनना, उसको कस्टम्स के बारे में बताया गया। Argyle sent word to Powhatan that he had captured Pocahontas, saying she would be freed if Powhatan would release the English prisoner and also return the English weapons and tools that his warrior had taken. तो ऑर्गल ने उसको भेजा कि उसके फादर को ये न्यूज़ भेजी कि आपकी बेटी को हमने कैद में रखा है और उसको अगर हम छोड़ देंगे, अगर आप हमारे जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देते हैं और टूल्स को वापस कर देते हैं, वेपन्स को वापस कर देते हैं। एट फर्स्ट ऑर्गल्स प्लान सीम्स टू वर्क। पहली बार तो ऑर्गल का प्लान लग रहा था उस पर काम हो रहा है। बट आफ्टर पोहाटन हियर द किडनैपिंग एंड ऑर्गल्स रैंसम डिमांड। किडनैपिंग के बारे में ऑर्गल्स के जो उसका जो प्लान डिमांड थी जो इस तरह की, चीफ फ्रीड 7 इंग्लिश प्रिजनर, हाउएवर ही डिड नॉट रिटर्न द स्टोलन वेपन एंड टूल्स। उसने 7 जो प्रिजनर थे उनको छोड़ दिया बट उसने वेपन्स को जो और टूल्स थे उनको वापस नहीं किया। As time passed without a solution, Powhatan finally refused to negotiate anyone. जैसे ही समय बीता उन्होंने
कोई भी नेगोशिएशन के लिए मना कर दिया। बाय मार्च 1614 everything had changed Powhatan's life. By then she had become a Christian. After the conversion she was named Rebecca, and Powhatan did not return the weapons, so Pocahontas had to stay in Jamestown. But she was not unhappy. वो दुखी नहीं थी. In April 1614, Pocahontas married to John Ruffel, a young tobacco farmer. की एक यंग टोबैको रफेल नाम के व्यक्ति से शादी हुई जो कि गवर्नर ऑफ वर्जीनिया था. द गवर्नर ऑफ वर्जीनिया थॉमस डेल एंड चीफ पोहाटन बोथ असेंटेड टू द मैरिज. और ये जो शादी हुई जॉन थॉमस डेल जो वर्जीनिया के गवर्नर थे और उसके जो फादर थे चीफ थे उन दोनों के मिलने से. पोकाहोंटस वॉज फर्स्ट नेटिव अमेरिकन टू मैरी वाइट मैन. वो फर्स्ट वुमेन थी और फर्स्ट नेटिव अमेरिकन थी जिसकी शादी वाइट मैन से हुई थी. द पीपल ऑफ जेम्सटाउन एंड ट्राइब सेलिब्रेट द मैरिज टुगेदर. और सब लोगों ने साथ में वो शादी जो थी वो सेलिब्रेट की. द फॉलोइंग ईयर पोकाहोंटस गिव बर्थ अ सन थॉमस. और नेक्स्ट ईयर जो था पोकाहोंटस ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था थॉमस. देयर वर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द मैरिज. एक बहुत बड़ा जो आउटकम निकला उसकी मैरिज का, द पीस ऑफ पोकाहोंटस. पीस ऑफ पोकाहोंटस यानी कि शांति का संदेश दिया था पोकाहोंटस ने. द यूनियन ऑफ नेटिव पोहाटन्स वुमेन एंड इंग्लिश मैन हेल्प टू क्लेम द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ट्राइब्स एंड कॉलोनिस्ट. तो जिस तरह से यूनियन जो हुई नेटिव पोहाटन्स वुमेन की और इंग्लिश मैन की, उसने शांति व्यवस्था बना रखी. वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको सॉर्ट आउट किया. पोकाहोंटस was seen to be the symbol of these peaceful time. वो उस चीज़ का मतलब सिंबल बनी. Pocahontas and her family along the Thomas Dale and some young Powhatan's women were on the ship to England in the spring 1616 with the goal of raising support from them for their settlement. जो Pocahontas उसकी फैमिली थी, थॉमस डेल और कुछ यंग पोहाटन्स वुमेन जो वहीं वहाँ इंग्लैंड आए और वो सपोर्ट करने के लिए कि सेटलमेंट किस तरह से उनका हो इंग्लिश लोगों का. आफ्टर डूकिंग इन सितंबर 1616 द ग्रुप टूर्ड ऑल द इंग्लैंड बिफोर फाइनली अराइविंग इन लंदन. पूरे टूर किया उन्होंने. एन आर्टिस्ट क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ पोकाहोंटस फॉर द वर्जीनिया कंपनी इन द पब्लिशिंग हर विजिट. वहाँ पे वो एक वर्जिन कंपनी में विजिट करी तो वहाँ पे उनकी एक पोर्ट्रेट बनाया गया. लंदन सोसाइटी वेल एज इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर मेट पोकाहोंटस एंड फाउंड हर इंचेंटिंग. और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे आके विजिट किया. पोकाहोंटस कॉज अ ग्रेट सेंसेशन इन द लंदन. शी मेट सम ऑफ द सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल. वो बहुत बड़ी सेंसेशन थी और वो बहुत सारे लोगों से मिली, इम्पोर्टेंट लोगों से. शी इवन मैट किंग जेम्स फर्स्ट. शी ऑल्सो मैट जॉन स्मिथ आफ्टर मैनी ईयर. जॉन स्मिथ से भी उसकी मुलाकात हुई. स्मिथ हैड नेवर फॉरगॉटन एंड करेजियस पोहाटन गर्ल. स्मिथ कभी नहीं भूल सकता था उस जो बहादुर लड़की थी पोहाटन गर्ल्स. ही रोट लेटर टू क्वीन एने टेलिंग हर ऑल द थिंग्स पोकाहोंटस हैड डन टू हेल्प द जेम्स टाउन सेटलमेंट. उसने जो भी मदद की उसके बारे में उसने मेंशन किया एक लेटर में जो क्वीन को उसने क्वीन एने को लिखा था. इन 1788 वर्जीनिया बिकम अ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. वर्जीनिया जो थी यूनाइटेड स्टेट का पार्ट बन गई. और पोकाहोंटस इज रिमेंबर्ड एज द प्रिंसेस हु ब्राउट अबाउट द पीस बिटवीन द इंग्लिश न्यूकमर एंड द नेटिव अमेरिकन. तो पोकाहोंटस को रिमेंबर किया जाता है, उसको याद किया जाता है प्रिंसेस जिसने शांति व्यवस्था बनाई और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया. तो दिस वाज द स्टोरी. ये एक अच्छा एक मैसेज मिला कि किस तरह से लोग शांति से रह सकते हैं और आपस में अच्छे से रह सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस. टेक केयर. बाय बाय.